Hello at exercise 8.2 chapter 8 class 9. So this question is based on midpoint theorem. So we will do three questions in sequence. All the three questions are just the similar one and we have to do in all the three questions the same thing that we will do in the first question. And after that there are two or three lines at the end which will actually give the answer of the relevant question. So please be very attentive. This will come again and again. So this is the practical application of midpoint theorem. How will we apply midpoint theorem in a question? So let's read the question with me. It says A, B, C, D is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. Clear? So A B C D मुझे एक quadrilateral दिया है जिसमें P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC and S is the midpoint of AD respectively. And AC is the diagonal. तो ये हमें diagonal यहाँ पे join किया हुआ है. अब हमें यहाँ पे three proofs करने हैं. First proof में SR ये देखिए ये साइड जो SR है this is parallel to AC and it is equal to half of AC. So देखो parallel and half. So midpoint theorem याद आई? Yes. And second में हमें प्रूफ करना है PQ is equal to SR. And third part में मुझे प्रूफ करना है PQRS is a parallelogram. So let's start. Question में जो हमें चीज given होती है, जो to prove होता है, अगर construction है, and the diagram, these will make you 1 mark. So first हमें given है A, B, C, D is a quadrilateral. So आपको यहाँ पे जो given है ना वो सेम वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है as it is. ठीक. अब यहाँ पे P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. बिल्कुल सेम लिखेंगे, आप कोई चेंजेस इसमें नहीं करेंगे. अब आपको जो टू प्रूफ करना है यही तीनों पार्ट्स आपको दोबारा से लिखने होंगे. फर्स्ट प्रूफ में आपको करना है SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. सेकेंड प्रूफ जो आपको करना है उसमें आपको करना है PQ is equal to SR. और जो आपको थर्ड प्रूफ करना है उसमें PQRS is a parallelogram. ठीक. तो ये थ्री पार्ट्स मुझे प्रूफ करने हैं वन बाय वन. सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन 4 मार्कर. क्लियर? सो 4 मार्कर के अकॉर्डिंग आई थिंक दे आर जस्टिफाइंग द आंसर. फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एमपीटी. आपको एमपीटी रिजल्ट यहाँ दिख रहा है तो आई विल जस्ट यूज एमपीटी. उसके लिए मुझे क्या करना होता है याद है? यस. Firstly, we will mention the name of the triangle and then the 2 points of 2 sides of the triangle. And after that, I can use MPT. तो लिखिए in triangle ADC. देखिए ADC. In triangle ADC, S and R are the midpoints. S and R are the midpoints of A, D and DC respectively. ठीक है. A, B and DC respectively. ये मेरा फर्स्ट जो लाइन बना. अकॉर्डिंगली आई कैन यूज एमपीटी जहां से मैं बोल सकती हूँ देखिए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to the third side and equal to half of it. So SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. So this is my first point and this is the first part proof and you will write MPT midpoint theorem here. अब जो हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया है, प्रूफ जो हमने किया है, देखिए इट वाज हार्डली अ लाइनर क्वेश्चन, isn't it? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है. जस्ट ब्लॉक इट. ब्लॉक करने का रीजन क्या है, टीचर को पता चल जा रहा है यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. सो यू हैव स्कोर्ड एट 1 mark फॉर गिवन टू प्रूफ एंड 1 mark इज फॉर दिस पार्ट. देन सेकंड में मुझे प्रूव करना है PQ is equal to SR. PQ is equal to SR. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई विल अगेन अप्लाई मिडपॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ABC. तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of P and Q are midpoints of AB and BC respectively.
ठीक। और अगर मैंने एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स ऑन द साइड शो किए हैं, आई कैन यूज मिड पॉइंट थ्योरम व्हिच सेज लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। So PQ is parallel to AC and at the same time PQ is equal to half of AC. तो ये मेरा सेकंड प्रूफ हो चुका है एंड प्रूफ को मैं ऑलवेज wanted to put in the block to make our work easier. अब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे आपको एमपीटी लिखना भी जरूरी है। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, व्हाट कैन आई से, बोलिए। देखो एस आर जो है साइड एस आर ए सी के पैरेलल भी है, हाफ ऑफ इट भी है। पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल भी है, हाफ ऑफ इट भी है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एट द सेम टाइम एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये आपका सेकंड पार्ट का प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट का प्रूफ होने के बाद अब थर्ड पार्ट तो आपका काफी इजी हो जाएगा बिकॉज हम सेकंड पार्ट के प्रूफ को यूज करने वाले हैं फॉर प्रूविंग द थर्ड पार्ट। अब आप यहाँ लिखेंगे एज SR is equal to PQ and SR is parallel to PQ। आपने proved above सेकंड पार्ट में ऑलरेडी किया है ना, तो आप यहाँ लिख देंगे proved above। therefore PQRS is a parallelogram। क्यों पैरेललोग्राम है? As one pair of opposite side is equal and parallel, hence it is a parallelogram। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको भी बताया, if you want you can write it here as well, as one pair of opposite side is equal and parallel, is equal and parallel, as one pair of opposite side is equal and parallel। So this is the proof of the third part। So we are done with question 1 of 8.2। अब मैं question 2 लूंगी। question 2 में सेम यही काम मुझे रिपीट करना है। बेसिकली मुझे जो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन करने वाली जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है उसको एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाती है डिपेंडिंग ऑन द आउटर स्पेशल टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, let's read the question number 2, 8.2। It says ABCD is a rhombus। So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक rhombus ले रहे हैं। ABCD is a rhombus। PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA। PQRS क्लियर। अब ये बोल रहा है ये जो PQRS को ज्वाइन करके बनेगा, we have to prove that this is a rectangle and this question actually comes in one marker as well। आपको यहाँ पे याद रखना होगा the line the quadrilateral formed by joining the midpoints of a rhombus will be a rectangle। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लेंगे इसका कन्वर्स हो जाएगा। हम लोगों को जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है आउटर क्वाड्रिलेटरल दैट विल बी द रेक्टेंगल, और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो अंदर हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वी विल प्रूव दैट इट इज अ rhombus। सो पहले क्वेश्चन 2 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ गिवन क्या है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है दिस इज योर गिवन, क्लियर। और यहाँ पे शो दैट के बाद जो लिखा है दिस इज योर टू प्रूफ। Would you like to give it a try? Yes, you can। A, B, C, D is a rhombus। A, B, C, D is a rhombus and P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। क्लियर। और मुझे यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये प्रूफ करना है PQRS is a rectangle। PQRS is a rectangle, ये मुझे प्रूफ करना है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर, दैट इज कंपैरेटिवली इजियर। अभी देखिए आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही काम किया था। PQRS को हमने क्या प्रूफ किया था, एक पैरेललोग्राम, वही अब यहाँ करेंगे। इसमें मुझे एक कंस्ट्रक्शन और चाहिए, तो मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन अपना ऐड कर देती हूँ। सिंपली जॉइन डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, AC एंड BD। तो अभी मैं ना सिर्फ AC को ज्वाइन कर रही हूँ, BD को अभी जब मुझे जरूरत होगी मैं तब ज्वाइन करूंगी, ताकि तुम्हें
मतलब जितना सिंपल क्वेश्चन रहेगा उतना तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं दोनों डायगोनल्स को अभी पहले ज्वाइन करूंगी ना, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम में ऐसा फील होगा ज्यादा लाइंस आ रही हैं, ठीक। और अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन जब आएगा, तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट एट द सेम टाइम। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट अ बिट, हो नहीं पाया, कोशिश बहुत की लेकिन मैंने। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। डायग्राम आप लोग स्केल से बनाएंगे, तो आई होप मेरे से बहुत अच्छा डायग्राम आप बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट। तो फर्स्ट मुझे दो ट्राइंगल्स मेंशन करनी है, दोनों ट्राइंगल्स में एमपीटी यूज करने के लिए मिड पॉइंट को मेंशन करना है। तो वी विल टेक ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में हमारा एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर। और यहां से अब मैं क्या लिख सकती हूँ, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा जिसको मैं अभी यूज करने वाली हूँ। और क्योंकि ये हमने एमपीटी की हेल्प से लिखा है, तो इट इज बेटर टू राइट इट हियर। So we will just repeat this again for triangle ABC. तो आप लिखेंगे in triangle ABC again P and Q are midpoints of, किसके midpoints है, A, B and BC respectively। ठीक है। अब इन दोनों से मैं क्या लिख सकती हूँ, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। अरे अरे अरे, कुछ बच्चे बोले मैम ये तो बिल्कुल सेम बन गया, अभी हमने किया था। तो वही मैंने आपको बोला था, वी विल डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो चलिए जी, अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर रही हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। आई थिंक जैसे ये वीडियो हमारा खत्म होगा, सारे बच्चों को ना ये बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। मेरे को किसी बच्चे का कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए यहाँ से। अब देखिए पी क्यू एस आर दोनों ए सी के पैरेलल भी है और इक्वल टू हाफ ऑफ इट भी है। तो दोनों को कंपेयर करते ही मैं लिख सकती हूँ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम as one pair of opposite sides as one pair of opposite sides is equal and parallel। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल सेम सिमिलर टू प्रीवियस वन है, जो कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से रिपीट होने वाला है। तो 3 टाइम्स इफ यू आर डूइंग द सेम स्टफ अच्छे से आना चाहिए। ओके। अब देखिए, अब मुझे ना यहाँ पे अब सेकंड डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब गिवन रोम्बस को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो मैं रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है। तो अब मैंने डायगोनल डीबी जो है वो कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिख दिया था, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। और अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इनको हम कुछ नाम रख लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज एम। डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम ओ लिख लेते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम एन लिख लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम ध्यान से करना बेटू, मैं यहाँ पे कलर भी आपका चेंज कर रही हूँ। उसका रीजन क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए जो मैं ये बोल रही हूँ। दिस इज एक्चुअली दी थ्योरी टाइप क्वेश्चन नाउ। अब देखो आपका एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, तो एम आर भी ओ एन के पैरेलल होगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। सिमिलरली आर क्यू जो है वो भी डीबी के पैरेलल है। एमपीटी से ही बोल पा रही हूँ मैं। तो आर क्यू का पार्ट आर एन इज पैरेलल टू एम ओ। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और एंगल ओ जो है दिस इज 90 डिग्री बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये एक पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ से एंगल आर को 90 डिग्री प्रूव कर सकती हूँ। एंड इफ वन एंगल इज 90 डिग्री ऑफ अ पैरेललोग्राम देन इट इज अ रेक्टेंगल। चलिए अब इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेगा। एस आर इज पैरेलल टू ए सी। देखिए एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एमपीटी से हमने ऑलरेडी यूज किया है ऊपर। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ एम आर इज पैरेलल टू ओ एन। अभी मैं यहाँ पे रीजन इकट्ठा लिख दूंगी दोनों के लिए। सिमिलरली एमपीटी को यूज करते हुए वी कैन से आर क्यू इज पैरेलल टू डीबी। आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी। देखो आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी। तो यहाँ से मैं पार्ट्स ऑफ पैरेलल लेना चाहती हूँ, तो आर एन इज पैरेलल टू एम। तो यहाँ पे आप इकट्ठा ही लिख दीजिए पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक। अब यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, देयरफॉर एम
MRNO is a parallelogram. MRNO is a parallelogram. अब यहाँ पे AC is perpendicular on DP. आपका रीजन क्या हो जाएगा? Diagonals of rhombus. Diagonals of rhombus. Diagonals of rhombus perpendicular to each other होते हैं ना. Therefore, angle O is 90 degree. And angle O is equal to angle R, opposite angles of parallelogram, opposite angles of parallelogram. और अब यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ? Yes, एंगल R is equal to 90 डिग्री. अब एंगल R is equal to 90 डिग्री लेकर मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मेरा आंसर निकल चुका है. तो आप लिखेंगे as one angle of parallelogram is 90 degree, therefore it is a rectangle. Therefore it is a rectangle. तो हमें यही प्रूव करना था. PQRS is a rectangle. So I think this is much comfortable. ठीक है. अगर नहीं समझ में आया प्लीज एक बार फिर से देखो. अगर फिर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको भी हम इसी के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर हम बिल्कुल सेम क्वेश्चंस बार बार करते हैं. This is question number 3, exercise 8.1 and just similar to the previous question. आपको यहाँ पे ABCD जो है वो एक rectangle given है and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA. तो देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक given हो जाएगा और ये वाला आपका टू प्रूव हो जाएगा. तो अब ये वाला सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है यार. खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगी. गिवन भी आप लिख दीजिएगा, टू प्रूव भी आप लिख दीजिएगा और मोना आपकी हेल्प करेगी प्रूव करने में. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या था? A, B, C, D is a rectangle. अब इसके मिड पॉइंट चूज करना स्टार्ट करिए. P, Q, R, S are the mid points of A, B, B, C, C, D, D. अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम ऐसे ऐसे, then like this and this. अब ये जो PQRS बना है हमें इसको एक रोम्बस प्रूफ करना है. ठीक है. प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे सेम वही काम हमें करना है. हमें यहाँ पर डायगोनल्स को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. तो हमें काम तो वही बार वही सेम काम ही करना है. बट आपको लास्ट एक इस क्वेश्चन में मैं फिर से प्रूव करके दिखा देती हूँ. ठीक है. चलिए अब इस क्वेश्चन में ये हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले स्टार्ट कर भी चुके हैं और उनका खत्म भी होने वाला है एंड दैट इज एक्चुअली द गुड पार्ट. इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना एक साथ. सो इन ट्राइंगल ADC, S and R are midpoints of A, B and DC respectively. From here we can say SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. So this is my first equation from MPT. काफी बार बच्चे क्या करते हैं जब एमपीटी पे काम करते हैं ना, वो ट्राइंगल मेंशन नहीं करते हैं. अगर आप ट्राइंगल मेंशन नहीं करोगे तो यू प्लीज डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. So in triangle ABC, P and Q are midpoints of A, B and BC respectively. ठीक है. अब यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ? यहाँ से मैं बोल सकती हूँ PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. So this is again MPT का यूज किया है हमने and let's say this is equation 2. Now I will compare, क्योंकि अब थर्ड क्वेश्चन सेम चल रहा है ना, तो from 1 and 2 I can say PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR. If one pair of opposite side is equal and parallel, then what can we say? We can say PQRS is a parallelogram. ये फर्स्ट पार्ट डन. ठीक है. अब देखो अगर ये एक पैरेललोग्राम हमारा बन गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? पैरेललोग्राम में मैं कोई प्रॉपर्टी प्रूव करूंगी रोम्बस करने के लिए. यस, अगर मैं पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर पाती हूँ देन आई कैन से इट इज अ रोम्बस. तो देखिए अब यहाँ से हम दूसरे डायगोनल को ज्वाइन कर रहे हैं. डायगोनल में थोड़ा लेट इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ ताकि आपका डायग्राम थोड़ा सा इजी रहे. अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइंस लिखती है. क्वेश्चन डन. सो इसी में आप लिखेंगे AC is equal to BD, diagonals of parallelogram. Diagonals
ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसी को मैं यूज करूंगी, तो मैं इसको थर्ड इक्वेशन बना के लिख रही हूँ। उसको प्रूफ करने के लिए हमें जो साथ में एक्स्ट्रा वर्क करना है वो ये देख लीजिए आप, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है ना। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने किया था। एंड बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल डीबीसी लेती, इसमें मिड पॉइंट लगाती, तो आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो दूसरा डायगोनल है दैट इज डीबी, तो आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीबी। तो दिस इज योर इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, एसी जो है, एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी के बराबर है, एंड आर क्यू जो है वो हाफ ऑफ डीबी के बराबर है। क्लियर? सो इफ आई combine equation 3 from equation 3 and 4, I can say SR is equal to RQ. SR is equal to RQ. And adjacent sides, if adjacent sides of a parallelogram are equal, if adjacent sides of a parallelogram are equal, then we can say PQRS is a rhombus, rhombus, rhombus. So we have proved PQRS is a rhombus. Hence proved.